So let me tell you what we are going to discuss today. So basically we are going to discuss about statistical terms, some statistical terms today. Statistical terms today. So that statistical terms means what is mean by normal distribution. What is mean by normal distribution? Then what is mean by uniform distribution? Basically uniform distribution we are going to discuss. Uniform distribution. Then after that we are going to discuss about the statistical terms, and that are very important terms like what is variance and standard deviation. What is variance and what is standard deviation? So that is this we are going to discuss, and if we get a time we are also going to look what is meant by covariance and what is correlation coefficient. Okay, so that terms we are going to discuss about. So that is what today's target is. Why we are discussing this right now? Because we have to discuss one more machine learning algorithm, that is naive Bayes classifier we are going to discuss. And in naive Bayes classifier, it's one of the variant is Gaussian NB. So to understand how Gaussian NB works, we must understand these distributions. Sorry. So I think we have already started with what is mean by probability density functions or these distributions, but we'll just start from scratch today. And along with this distribution, we are going to understand what is mean by variance and standard deviation. So these terms are very common terms in data science, and I must say that this is most important terms of data science. So let's start discussing about these terms by taking one example. Okay, so let me take one real life example. Let me see what is that kind of distribution, whether it is normal distribution, it is uniform distribution, what is its variance, what is its standard deviation. So that kind of things we are going to discuss. So let me take one example for that. Okay, so the example we are going to take is about heights, let's say. So height of students in the class, height of students in the class. So what we are going to do is, let's consider we are having 100 students in a class. We are having 100 students. For 100 students, their heights are being recorded. So for example, the students heights in centimeters, let me call it as. So in centimeter their heights are like 150 centimeter, 172 centimeter, then after that 180 centimeter, then after that 145 centimeter, then after that 139 centimeter, then likewise. Then after that, likewise, we have recorded these heights in centimeters, so in centimeters like this. So that are being stored in this, like this is student one's height, this is student's two's height, this is third student's height, this is fourth student's height, likewise. So like that we are having height for 100 students. So last student's height is, for example, 155 centimeters, let's say. Now what we are going to see, we are just going to find the probability density function, its probability density function. So let me call it as probability density function. Probability density function. Now what it is, it means probability density function. So what it means is, so what we are going to do is, let's see your heights. If we just sort these heights, अगर ये जो heights है, ये सारे heights है, अगर इसको हमने sort किया in ascending order, तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे कम वाला हाइट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा बंदा है कि उसका हाइट है सिर्फ 130 सेंटीमीटर्स। सो इसके नेक्स्ट वाला बंदा है, उसका हाइट है 131 सेंटीमीटर, इसके नेक्स्ट वाला भी है 131 वाला ही है, उसके नेक्स्ट वाला है 132 वाला है। लाइकवाइज जो लास्ट बंदा है उसका जो हाइट है वो है 187 सेंटीमीटर, लेट्स से 187 सेंटीमीटर, मतलब एक 6.5 फीट जाता है, 6 फीट 5, 6 फीट एंड 6 इंचेस काइंड ऑफ थिंग। सो जो लास्ट बंदा उसका हाइट है 187, एंड जो पहला बंदा है उसका हाइट है 130 सेंटीमीटर। सो उसको हमने सॉर्ट किया, सो दैट वी हैव जस्ट सॉर्टेड, मतलब अगर ये बंदे खड़े इन अ लाइन
तो ये सबसे आगे खड़ा रहेगा, बाद में ये छोटा थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा, लाइक वाइज ये जो लास्ट वाला बंदा है वो सबसे हाइटेड होगा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सॉर्टेड मैनर. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई जस्ट वांट टू सी कि आपका जो पहला हाइट वाला बंदा है वो है 130 सेंटीमीटर्स का, जो लास्ट वाला बंदा है वो 187 सेंटीमीटर्स का. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि जो भी हाइट है, फॉर एग्जाम्पल 130 सेंटीमीटर्स, 131 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल दीज आर इन सेंटीमीटर, सो 132 सेंटीमीटर, 133, 134, लाइक वाइज लाइक 187 तक. सो इनका जो है ये काउंट में फाइंड आउट करने वाला. काउंट इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. सो 130 वाला एक ही बंदा, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, 131 वाला एक ही बंदा है, 131 के दो बंदे, 131 के दो बंदे, 132 के अभी यहाँ पे सारा नहीं लिखा मैंने, लेकिन लेट्स लेट्स वी कैन जस्ट अज्यूम दैट 132 के फॉर एग्जांपल दो ही बंदे, 133 के पांच बंदे लेट्स से, 134 के तीन बंदे लेट्स से. सो लाइक वाइज 187 के भी कम ही रहेगा, एक आध आदमी होता है इतना ज्यादा हाइट वाला 187 वाला. लेकिन अगर मैंने इन बिटवीन 180 वाला भी लिया तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक 3 students are going to be around 6 feet height, तो इतना हाइट नहीं होता. लेकिन if I check for example 150 to 160 centimeter, let's consider if I check for 160 centimeters, तो इसके बहुत ज्यादा स्टूडेंट आपको मिलेगा, अराउंड 20 स्टूडेंट्स ऐसे कुछ तो मिल जाएंगे आपको. तो इसका मतलब सबसे कम हाइट होने वाले लोग भी कम है, एंड बहुत ज्यादा हाइट होने वाले भी लोग कम है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसका मैं निकालता हूँ प्लॉट. So now I'm going to plot, and that plot would be like this. So on y-axis we are going to keep the count. So on y-axis I'm going to keep the count, and on x-axis we are going to keep the heights. So heights means यहाँ पे मैं रखूंगा 130, then 131, then 132, likewise. So last में होगा 187, ये वाला. तो इनका काउंट में यहाँ पे, सो 130 वाले कितने लोग हैं, एक ही बंदा है, सो ये एक बंदा है तो इसका एक ही बंदा है. 131 के कितने बंदे, 131 के दो बंदे, सो ये अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11, लाइक वाइज 131 के फॉर एग्जांपल दो बंदे, 132 के कितने, दो बंदे, 133 के कितने, सो लाइक वाइज 5 बंदे, ऐसे कुछ तो. सो इफ यू जस्ट ड्रॉ इट आउट, इफ अभी देखो ये 130 से लेकर 187, ये जो भी स्क्रीन है मेरा इस पे नहीं आएंगे, तो इफ यू जस्ट ड्रॉ और प्लॉट दिस आउट, आपके जो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, वट एवर जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्लॉट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे मिलता है आपको वो. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट यूजिंग रेड कलर, तो ये आपको ऐसे मिलेगा. सो इसका मतलब क्या है कि कम हाइट वाले लोग भी कम है, तो बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, ये ज्यादा हाइट वाले भी लोग बहुत कम है, ठीक है. बट इन बिटवीन अगर आपने 160 सेंटीमीटर्स देखा, 165 सेंटीमीटर देखा, तो उसके जो लोग हैं वो ज्यादा रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज 20 इन दिस केस. एंड ये नॉर्मली सिनेरियो सब चीजों में रहता है. अभी आपने हाइट का देखा, अगर मैंने वेट का लिया, वेट का, सो वेट का भी कर्व ऐसे ही दिखेगा, सिर्फ वेट में कैसे होता कि यहाँ पे हम वेट ले लेंगे इनटू केजीज फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ चेंज होगा, लेकिन दिखने में तो ये बेल शेप कर्व ही लगेगा. सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी बेल शेप्ड कर्व, इट इज जस्ट गोइंग टू बी लुक लाइक बेल शेप्ड कर्व. सो ये वेट ले लो आप, स्टूडेंट के वेट्स ले लो, उनके काउंट देखो कि 40 केजी वाले कितने, 41 केजी वाले कितने, 60 केजी वाले कितने, सो उनका काउंट ले लो, काउंट वाई एक्सिस पे ले लो, एंड एक्स एक्सिस पे वो डिफरेंट वैल्यूज ले लो हाइट वेट के. अगर आपने मार्क्स का देखा तो मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, मतलब सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट मतलब कम ही रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 मार्क्स मिलने वाले बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, वैसे आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इन बिटवीन 60 to 70% मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं. सो दैट इज ऑलवेज, दैट कर्व इज ऑलवेज गोइंग टू लुक लाइक दिस. सो ये बेल शेप्ड कर्व है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस हाउ योर डेटा इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब अगर मैंने एक क्लास को एक बर्ड आई व्यू लेना है मुझे एक क्लास के ऊपर, कि एक क्लास में अराउंड ये जो स्टूडेंट का क्वालिटी वो कैसा है, अगर वो मुझे चेक करना है, तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है
इनका जो मार्क्स का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर एक्स एक्सिस पे मार्क्स है तो हम देख सकते हैं कि अगर इनका मार्क्स का रेंज 80 to 90 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब वो क्लास बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ये जो है ये अगर 30 to 40 के बीच में, 30-40 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा है स्टूडेंट, 30 and 40 मार्क्स के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब वो क्लास बहुत कम परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। ओके, सो या, सो इफ यू जस्ट टेक एनी एग्जांपल, मतलब रियल लाइफ में कोई भी किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, ये ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखता है। इसको और कई नाम है, ये जो प्लॉट होता है उसको और ज्यादा नाम होते हैं। सो इन केस ऑफ अगर आपने डिस्क्रीट वेरिएबल का लिया तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हिस्टोग्राम, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप बोलोगे सर इसको प्रोबेबिलिटी क्यों बोला, आप बोलोगे सर इसको प्रोबेबिलिटी क्यों बोला। सी, यहाँ पे मैंने जो काउंट लिया है ना, इसके बजाय मैं प्रोबेबिलिटी भी ले सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी सिंपली इज लाइक व्हाट, टोटल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो मैं देखूंगा कि कितने परसेंट लोग 130 हाइट के हैं, कितने परसेंट। सो दैट इज, अगर टोटल 100 है तो एक बंदा है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अगर मैंने देखा 131 स्टूडेंट्स कितने हैं, सो दैट इज 2 आउट ऑफ 100। अगर मैंने देखा 160 हाइट, 160 सेंटीमीटर हाइट होने वाले कितने स्टूडेंट्स है, दैट इज गोइंग टू बी 20 आउट ऑफ 100, मतलब अराउंड 20%। और 0.2 यहाँ पे आएगा, अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये 0.2 आएगा, ये आएगा 0.01। तो अगर काउंट की जगह पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिया तो ये सिर्फ ये नेमिंग चेंज होगा, 20 के बजाय हम लिखेंगे 0.2, ये 1 के बजाय हम लिखेंगे 0.01, लेकिन ये जो कर है ये ऐसे ही दिखेगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन जस्ट कॉल इट एज अ हिस्टोग्राम, और वी कैन जस्ट कॉल इट एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वी कैन कॉल इट एज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये गॉसियन मतलब, ये गॉसियन एक साइंटिस्ट था, उसने इसका जो इक्वेशन है, जो भी इसके इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, सो उसका एक इक्वेशन भी है टू डिफाइन दिस कर्व। सो दैट इज व्हाट गॉसियन कर्व इज और गॉसियन इक्वेशन इज। एंड इसको नॉर्मल लाइफ में इसको बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। सो इसका मतलब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस बेल कर्व, or you can just see that probability density function, or probability density function means specifically about normal probability density function और normal distribution। probability density function तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो भी ये वेट, हाइट, मार्क्स ऐसे वाले जो वेरिएबल्स है उनका पीडीएफ। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अभी नॉर्मल क्यों बोलते हैं, रीजन इज दैट नॉर्मली सब वेरिएबल्स का कर्व ऐसे ही दिखता है, हाइट ले लो, मार्क्स ले लो, वेट ले लो, कोई भी ले लो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसे ही दिखता है। देन आफ्टर दैट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, और नॉर्मल, लेट मी जस्ट राइट डाउन ना, अभी यहाँ पे नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी को बोला जाता है, या तो और वी कैन जस्ट कॉल इट एज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी ऐसे ही दिखता है। अभी देखो छोटी छोटी सी डिफरेंस होता है, अदरवाइज इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। सो हिस्टोग्राम, लेट मी कॉल इट एज, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइक, अगर आपने और डिटेल में देखा होगा अबाउट सीबन, जो भी लाइब्रेरी मैंने आपको डिस्कस किया था ऑन सैटरडे, तो इसको काउंट प्लॉट भी बोला जाता है, दैट इज काउंट प्लॉट। ठीक है, सो काउंट प्लॉट इज जस्ट काउंटिंग, लेकिन ये बेल शेप में आया, दैट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन टाइप इज सेम, कि काउंट आपका वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे आपका वेरिएबल होता है। सो दैट इज अवर काउंट प्लॉट इज आल्सो। ठीक है, सो मेनी टर्म्स आर देयर, बट आपका जो कर है ये ऐसे ही दिखता है। नाउ what is the problem is that if you are having this kind of curve, आप बोलोगे ये एक ही जैसा कर्व है, लेकिन अगर हम ऐसे कर्व निकाले तो फॉर एग्जांपल दिस इज वन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी आर हैविंग, सॉरी ये इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, ये निगेटिव में नहीं जाता, ऑब्वियसली ये निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपका जो फ्रीक्वेंसी है तो काउंट ये माइनस कभी नहीं होता। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन इट प्रॉपरली हियर। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर, लेट्स कंसीडर हाइट, for example. Then after that let's consider we are having a distribution for weight, so weight ke liye let's consider distribution is like this, so this is for weights।
लेट्स कंसीडर मार्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ, मार्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके, तो मार्स लेट्स कंसीडर ये जो मार्स है दैट इज फ्रॉम अगेन जीरो, लेकिन ये जो है ये मार्स फॉर एग्जाम्पल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, सो दिस इज फॉर मार्क्स, this is for marks. Now obvious question in your mind, we are having three distributions over here. One is for height, second is for weight, and third is for mass. दिखने में ये अलग ही दिखेंगे, ऑब्वियसली अलग दिखने वाले, लेकिन हाउ टू कैटेगराइज दीज थ्री इक्वेशंस लाइक एज अ डिफरेंट इक्वेशन, मतलब देखो हर एक का ये जो चौड़ापन है दैट इज डिफरेंट। ये आप देख सकते हैं येलो का जो ये चौड़ापन है ये ज्यादा है देन अदर टू, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके हिसाब से। ये जो हाइट है इसका जो ये जो हाइट है फॉर एग्जांपल इसका जो हाइट है ये टोटल हाइट ये अलग है। सो देयर आर सम पैरामीटर्स बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे। तो ये जो भी है ये तीन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, लेकिन ये जो तीनों है इसको एक डिस्टिंक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो तीन चीजों पे कि ये जो भी आपका पीक है वो एग्जैक्टली कहाँ पे, मतलब इसका पिक देख सकते हैं आप, अगर देखेंगे तो इसका पिक इस एक्स लोकेशन पे, मतलब ये अगर आपका मार्स है तो ये मार्स फॉर एग्जांपल पिक इसका 60 मार्क्स पे है। वेट का जो पीक है, वेट का आप देख सकते हैं येलो वाला, सो वेट का जो पीक है मतलब सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है ये 60 मार्क्स वाले सबसे ज्यादा वेट लेट्स कंसीडर 55 kg वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा हाइट वाले। एंड देन आफ्टर दैट ये अगर आपकी सॉरी ज्यादा वेट वाले 55 kg ज्यादा वेट वाले। एंड अगर आपने हाइट के केस में बोला तो 5.6 इंच जो भी है आपका हाइट, सो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। तो इसको कैटेगराइज करने के लिए अगेन हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइक व्हाट मीन, मीडियन एंड मोड, सो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, मीन मीडियन एंड मोड। लेकिन यहाँ पे ये जो पैरामीटर यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं ये सिर्फ हम मीन कंसिडर करेंगे। सो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मतलब एवरेज, so average height, average weight, average mass, so that is defined using mu, that is defined using mu। so ये जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक मीन होता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे हम। सो इसका मीन 60 पे आया, इसका 55 पे, इसका 5.6 पे। आप बोलोगे सर ये तो मोड हो गया, ये यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इसका मीन एंड मोड सेम आ रहा है, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अदरवाइज ये अलग अलग होते हैं, अदरवाइज ये अलग अलग होते हैं। तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका जो मिडल है, मिडल ये हम मीन ले सकते हैं, मिडिल ले सकते हैं, मोड ले सकते हैं, पर इन दिस केस वी आर गोइंग टू कंसीडर मीन। अलोंग विथ मीन सिर्फ आपको मिडल मिला, लेकिन ये जो इसका जो स्प्रेड है यहाँ पे देख सकते हैं येलो का स्प्रेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके हिसाब से ये जो ब्लू है, ब्लू का स्प्रेड सबसे कम है। सो ये जो स्प्रेड है दैट वी डिफाइन यूजिंग सिग्मा स्क्वायर, that we define using sigma square, so that is called as variance, that is called as variance। ना ये वेरिएंस यहाँ पे तो मैंने बता दिया, मतलब ये तो मीन है, इसमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, दैट इज एवरेज। लेकिन व्हाट इज मीन बाय वेरिएंस, सो लेट मी टेक ओनली वन एग्जांपल ओवर हियर। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। इन दिस वी आर हैविंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन, so this is one distribution we are having another distribution also। now we can clearly see that ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका स्प्रेड ये है, एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका स्प्रेड इतना है। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्प्रेड ज्यादा है, द स्प्रेड इज हायर, द स्प्रेड इज हायर। स्प्रेड इज हायर मतलब क्या, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड मार्क्स मिले, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मार्क्स मिले। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसमें क्या हो कि एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत ज्यादा मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल 40 to 50, सारे लोग 40 to 50 के बीच में, इसका मतलब अगर ये स्प्रेड बहुत कम है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे स्प्रेड ज्यादा है मतलब अराउंड जो आपको मार्क्स मिले ये स्प्रेड ज्यादा है।
एंड ये जो स्प्रेड है ये कैलकुलेट करना पड़ता है. सो ये जो स्प्रेड है ये सिंगल लाइन से, ये सिंगल एरो लाइन से मैंने किया हुआ. सो दैट इज स्प्रेड फॉर योर दिस सेकंड प्लॉट, एंड फॉर फर्स्ट प्लॉट दिस इज योर फर्स्ट प्लॉट इज अंदर वाला. तो इसके लिए भी ये स्प्रेड है. तो to calculate this spread we are going to use one term, that is variance. That is variance to calculate the spread, how your data is spreaded out, how your data is spread out. तो ये कितना दूर spread out हुआ है, that is what it is. So let me tell you what is mean by variance is. ये तो according to normal distribution हुआ, लेकिन in general में आपको variance क्या होता है, let me tell you. For example, if you remember or if you know, आपको term work के marks मिलते हैं, term work. You get term work marks. So term work marks means the marks which are given by your internal teacher, or these are your internal marks. इसमें कैसे होता है कि अगर आपका 50 मार्क्स का वो जो भी है टर्म वर्क है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 0 किसी को नहीं मार्क्स मिलते. ठीक है, 1 भी किसी को नहीं मिलता. आउट ऑफ 50 आई एम टॉकिंग अबाउट. एक आध बंदा होता है उसको 10 ऑलमोस्ट नहीं होता. इफ यू नो द सिस्टम तो आपको पता होगा कि ये 50 में से 20 को पासिंग रहता, तो 20 के नीचे तो किसी को नहीं रहता, मतलब 19 तक किसी को भी नहीं मिलेगा. जो सबसे खराब बंदा होगा उसी को अगर टीचर के साथ अगर अच्छे नहीं है उसके रिलेशंस, तो उस केस में 20 वाला एक आध बंदा मिल सकता है आपको. उसके बाद में ये 20 to 30 के बीच में भी बहुत कम लोग होते हैं. ये जो लोग हैं ना जिनको 20 to 30 के बीच में टर्म वर्क मिला, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो पंगा लिया टीचर से. दैट इज व्हाट इट मीन्स. देन आफ्टर दैट जो नॉर्मली जो भी मार्क्स मिलते हैं ना स्टूडेंट को टर्म वर्क में, तो आप देख सकते हैं ये अराउंड एक अगर आप एवरेज कॉलेज ले लो पुणे में से, तो ये एवरेज 40 से लेकर 42, मतलब लेट मी कॉल इट एज 38. सो 38 से लेकर 42 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 38 टू 42 के बीच में. सो इफ आई जस्ट फाइंड आउट द स्प्रेड, अगर मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो दिस इज 0, दिस इज 50. अभी 50 भी किसी को नहीं दिया जाता टर्म वर्क में, इफ यू नो 50 किसी को नहीं मार्क्स दिए जाते क्योंकि आउट ऑफ हो जाते हैं. बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है तो उसको 49 मिलेंगे, लेकिन एक आध होगा. 45 के आगे जाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है टर्म वर्क में. लेकिन 38 टू 42, सो फॉर एग्जांपल दिस इज 38 टू 42, 38 टू 42. सो दिस इज ओनली 4 का डिफरेंस. ये 38 है, ये 42 है, ये आपका 10 20 30 है, ये 45 40 वॉट एवर दैट इज. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम ही, मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं. यहाँ पे थोड़े से बंदे हो गए, यहाँ पे थोड़े से हो गए, लेकिन सारे बंदे इसी रेंज में, ऑलमोस्ट यहाँ पे है ही नहीं. सो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म वर्क का. तो सारे 38 टू 42 के बीच में ही स्टूडेंट्स है, दैट इज व्हाट इट इज. लेकिन सेम पेपर है, अगर आपके पास एक्सटर्नल है, अगर आपके पास एक्सटर्नल, अगर ये एक्सटर्नल एग्जाम है 50 मार्क्स था, तो उस केस में आपको कैसे मार्क्स होते हैं, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से होते हैं, जो आप उस टाइम पे परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे. एंड दैट टाइम ऑल्सो, अभी वहां पे भी 0 मार्क्स नहीं दिया जाता या तो 50 मार्क्स भी नहीं दिया जाता एक्सटर्नल से, लेकिन इन जनरल ये जो मार्क्स होते हैं ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो यहाँ पे भी 38 टू 42 में ज्यादा लोग हो गए, लेकिन ये थोड़े से ऐसे मार्क्स होते हैं. सो काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, उनको 30 भी मिलता है, 35 भी मिलता है. यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा होगा कि 45 वाले भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्प्रेड होता है वो ज्यादा होता है. सो मतलब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स देने का जो तरीका होता है वो एक्सटर्नल के पास यहाँ एग्जाम में ज्यादा होता है, लेकिन इंटरनल या तो टर्म वर्क एग्जाम में सब लोगों को वही मार्क्स मिलते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन स्प्रेड इज. अभी इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज वेरिएंस इज. let me tell you what is variance is. So variance is it is just the difference between, for example अगर आपके पास ये values है कि फॉर एग्जाम्पल आपका वेट, सो वेट जो है आपके पास वैरिड है फ्रॉम, मिनिमम वेट वाला बंदा है 40 kg वाला, मैक्सिमम वेट वाला बंदा है 90 kg वाला आपके क्लास में. तो व्हाट दिस वेरिएंस मीन्स इज, इनका जो मीन है, सो मीन फॉर एग्जाम्पल सबका एवरेज जो वेट है दैट इज लेट्स कंसीडर 60 kg. तो व्हाट वेरिएंस मीन्स इज ऑन एन एवरेज 60 kg से
जो स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना दूर है ऑन एन एवरेज, सो अराउंड मीन, सो अराउंड मीन। सो अगर वेरिएंस मतलब लेट मी टेल यू वेरिएंस इज व्हाट, कि ऑन एन एवरेज जो भी स्टूडेंट्स है आपके क्लास के, उनका जो वेट है ये मीन वेट से कितना दूर है, मीन वेट से कितना दूर है। सो इसका मतलब क्या कि इफ वेट वेट वेक्टर इज दिस, सो डब्ल्यू डिफाइंस वेट वेक्टर, सो यहाँ पे सब स्टूडेंट के वेट होंगे, सो वेट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, वेट ऑफ सेकंड स्टूडेंट, वेट ऑफ थर्ड स्टूडेंट, लाइकवाइज वेट ऑफ एन स्टूडेंट, सो एन स्टूडेंट्स वी आर हैविंग लेट्स से। तो व्हाट इज वेरिएंस मींस, वेरिएंस में हम कैलकुलेट करते कि वेट ऑफ एवरी स्टूडेंट, जो भी हर एक स्टूडेंट है वो आपके मीन वेट से कितना दूर है। अभी ये जो मीन वेट है ना, इसको मैं बोलता हूँ डब्ल्यू म्यू। सो डब्ल्यू म्यू मीन्स मीन वेट या तो एवरेज वेट। तो हर एक जो बंदा है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर एक, लेट मी जस्ट राइट दिस लाइक दिस, ओके ओके। सो हर एक बंदा जो है इसका मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू 1 से n तक, मतलब फॉर n स्टूडेंट्स इट मीन्स फॉर n स्टूडेंट आई एम गोइंग टू सम अप व्हाट, the difference between weight of ith student and your w mu. So w mu is your mean weight, it is your mean weight, and I'm just going to do it squared, I'm just going to do it square and divide by n, so because n student का है तो डिवाइड बाय n करेंगे, बिकॉज ये समेशन है, सो सबका टोटल नहीं चाहिए हमें, डिवाइड बाय n करेंगे। अभी यहाँ पे तो समझ में आया कि डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, व्हाट इट मीन्स, डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू म्यू। सो डब्ल्यू म्यू इन दिस केस इज 60 केजी, सो 60 केजी इज एवरेज। डब्ल्यू आई मतलब वेट ऑफ आइथ स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट का वेट हम मीन वेट से माइनस करेंगे या तो एवरेज वेट से माइनस करेंगे। मतलब ये क्या मेजर कर रहा है आपका, हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम मीन, अवे फ्रॉम मीन। सो ये आप एवरेज वेट से कितना दूर है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस टर्म इज। आप बोलोगे स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया आपने, लेट मी टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक बंदे का जो वेट है वो है 45 केजी एंड दूसरे बंदे का जो वेट है वो है 75 केजी। अभी सिर्फ दो ही स्टूडेंट है आपके क्लास में, इसे हम कंसीडर करें, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका वेरिएंस कितना बनेगा, इट इज इक्वल टू पहले बंदे का वेट माइनस एवरेज। अभी इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। सो पहले बंदे का जो भी है दैट इज 45 माइनस 60, ये फर्स्ट बंदे के लिए, अगर मैं स्क्वायर नहीं करता तो, प्लस दूसरे बंदे के लिए क्या आएगा 75 माइनस 60। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 45 माइनस 60 इज गोइंग टू बी माइनस 15 प्लस इट इज गोइंग टू बी 15, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब ये जीरो वेरिएंस, जीरो वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि सब लोगों का जो वेट है वो 60 ही है, दैट इज व्हाट जीरो वेरिएंस मीन्स। मतलब आपके मीन वेट से कोई भी बंदा दूर नहीं है, सब मीन पे है, तो वेरिएंस जीरो आएगा। तो यहाँ पे ऐसी केस है क्या, नहीं है। why this has happened, because इसका जो डिफरेंस है and इसका जो डिफरेंस है that have cancelled each other, and इसलिए हमें स्क्वेयर्ड वैल्यू लेते हैं। सो इनका अगर स्क्वायर ले लेंगे आप तो इनका वेरिएंस बनेगा, देखो ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, सो नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 225 प्लस 225, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 450। सो इन दैट केस इट इज जस्ट गोइंग टू बी 450 डिवाइड बाय 2, बिकॉज दो स्टूडेंट्स है, ये n को मैंने पकड़ा नहीं, सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी 225, सो दैट इज व्हाट योर वेरिएंस इज, दैट इज व्हाट योर वेरिएंस इज। सो अभी आप बोलोगे ये तो ठीक है सर कि हमने डिफरेंस लिया एंड डिफरेंस का समेशन किया, बट ये स्क्वेयर्ड डिफरेंस का समेशन है, सो दिस इज समेशन ऑफ स्क्वेयर्ड वैल्यूज। तो ये एक्चुअल आपको नहीं बताएगा, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 225 स्प्रेड है, मतलब क्या अराउंड 60 केजी आपका स्प्रेड कितना है 225, इट इज अनरियलिस्टिक, इट इज अनरियलिस्टिक। तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज वन मोर टर्म, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो भी वेरिएंस निकाला है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वेरिएंस। अब स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमने समेशन यहाँ पे स्क्वायर्स का लिया था, तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन, that is standard deviation, it is also called as a spread, it is also spread, लेकिन ये स्क्वायर्ड वैल्यू होता है।
सो अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आने वाला है 225. सो व्हाट इज दैट स्क्वायर रूट इज 15. 225 का स्क्वायर रूट इज 15. सो अल्टीमेटली व्हाट इट मींस, ये जो है ना ये आपको एक्चुअली बताता है कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं ऑन एन एवरेज ये 60 केजी से कितना प्लस माइनस है. तो कितना प्लस माइनस है 15. तो हमने जो वैल्यूज लिए थे उसके अकॉर्डिंगली तो ये सही काम कर गया. तो ये जो स्प्रेड है ना, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज गोइंग टू टेल यू कि फ्रॉम मीन वैल्यूज आपके जो बाकी के वैल्यूज है वो कितना दूर है. तो इफ आई जस्ट कंसिडर दिस एज अ मीन, सो फॉर एग्जांपल मीन इज 60 केजी एंड अगर आपका क्लास ए है, क्लास ए, तो क्लास ए में ये जो स्प्रेड है फॉर एग्जांपल 15 है. तो 15 स्प्रेड है मतलब अगर मैंने यहाँ पे 40 बोला, ये 75 बोला, ये अगर आपका फॉर एग्जांपल 30 है, ये अगर 90 है लाइकवाइज. तो अगर मैं क्लास ए का जो स्प्रेड है वो 15 बोलता हूँ, इसका मतलब क्या, प्लस माइनस 15. सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी 45, लेट मी कॉल इट एज. सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी दिस स्प्रेड वी आर हैविंग. अभी एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, मतलब इतना ही है, ये इधर भी कुछ होते हैं इधर भी कुछ होते हैं, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. अभी दूसरा क्लास बी ऐसे हो सकती है, वहां पे स्प्रेड 30 है. सो स्प्रेड 30 मतलब क्या कि प्लस माइनस 30. सो अराउंड मतलब ऑन एन एवरेज आपके जो वैल्यूज है अराउंड मीन कितने है, ये 30 है. यहाँ पे अराउंड मीन कितने हैं 15. ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑन एन एवरेज. इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बट ऑन एन एवरेज. सो ऑब्वियसली ये जो है ना ये आपका स्प्रेड है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अगर आपका स्प्रेड 30 ज्यादा है तो. अगर आपका स्प्रेड कम है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, अराउंड ऐसे रहेगा. सो दैट इज व्हाट यू कैन गेस फ्रॉम दिस. And that is why while defining any distribution we are going to use sigma square, where sigma is standard deviation. Sigma is standard deviation. Sigma is standard deviation and mu is what, mean. तो म्यू बताता है कि आपका मेन कहाँ पे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका जो वैल्यूज है स्टैंडर्ड डेविएटेड वैल्यूज, मतलब ये जो वैल्यूज है ये कितना स्प्रेड है. सो यहाँ पे जनरली सिग्मा स्क्वायर इसलिए बोलते हैं कि ये वेरिएंस पकड़ता है, दैट इज वी कॉल इट एज वेरिएंस. सो सिग्मा इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन इन दैट केस. सो we can just define your Gaussian distribution or normal distribution using mu and sigma square, mu and sigma square. ठीक है. So that is what your standard deviation and mean is. So mean and standard deviation के हिसाब से we can just see how your values are being distributed, how your values are being distributed. ओके. सो अभी क्या करते हैं, ये जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स लिए थे, मैं क्या कहता हूँ आई विल जस्ट शो यू सम प्लॉट्स विद डिफरेंट स्प्रेड्स एंड डिफरेंट मीन्स. तो आपके जो प्लॉट है वो कैसे प्लॉट हो गए दैट आई एम गोइंग टू शो यू. तो एक डिफरेंट मीन एंड डिफरेंट जो भी आपका स्टैंडर्ड डिविजन उसके हिसाब से आई विल शो यू सम प्लॉट्स. So to plot that out, what I think we have some function for that. Okay, so standard. Okay. ठीक है. स्प्रेड इज -3 + 3 सिग्मा. ओके ओके. -3 + 3 मला वाटतं सिग्मा. सिग्मा इज युअर मॅथ डॉट स्क्वेअर व्हॅरियन्स लिनियर स्पेस 100 व्हॅल्यूज मध्ये डिवाइड. ठीक आहे. सो 100 पॉइंट्स मिळाले तुला एक्स ऍक्सिस वरती वाय स्टॅट डॉट नॉर्मल probability distribution. Okay, okay. Now what I will do, I will just mu means your मीन इज. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो है ये 0 है, बिकॉज यहाँ पे हमने मीन 0 लिया था. वेरिएंस इज 1. सो वेरिएंस इज 1 बोलेगे तो ये देखो -1 यहाँ से लेकर +1 यहाँ तक. सो अराउंड ऐसे स्प्रेड आपका होगा. सो काफी ज्यादा वैल्यूज -1 से लेकर +1 तक जाते हैं. दैट इज व्हाट इट मीन्स इज. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट another plot, that is अभी मैंने x क्रिएट किया. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक दिस वेरिएंस एज 2. ठीक है. मैं यहाँ पे नहीं करता, नीचे करता हूँ. ठीक है.
ओके, नाउ यू कैन जस्ट सी कि ये प्लॉट अभी ये दोनों एक स्केल पे नहीं है, सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी जस्ट call it as x1, x1, and let me call it as x1, let me call it as ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको है ना, ठीक है, इसको मैं ये करता हूँ, सिर्फ x1 मैंने जनरेट किया म्यू एंड वेरिएंस के हिसाब से, सो आई हैव क्रिएटेड x1 इन दैट केस. नाउ लेट मी क्रिएट x2, so x2 here, and okay, let me just make it as highlight. So x2 भी create करता हूँ with same mean and variance is 2. So that is another example, and let me just plot both at the time, क्योंकि ये दोनों एक साथ देखेंगे तो अच्छा लगेगा. तो ये x1 को मैं plot कर रहा हूँ, so that is just going to be x1, and let me just plot x2 as well here, x2, and here also I'm going to display x2. ठीक है, and if you just see both, वेयर इज अनदर, ओके, अभी ये दोनों ओवरलैप तो नहीं हो गए बेसिकली, लेकिन पीएलटी डॉट प्लॉट पण दोन्ही प्लॉट झाले पाहिजेत रे. नाही, काय गरज नाही, काय गरज नाही पीएलटी डॉट शो याच्यामध्ये, ज्युपिटर मध्ये काय गरज नाही पीएलटी डॉट शो. ज्युपिटर असेल तर गरज नाही, याच्यामुळे करत असेल पीएलटी डॉट शो करायला लागतं. कुठं तर मी x1 आणि x2 दोन्ही व्हॅल्यू नाही, व्हॅरियन्स तर दोघांचा वेगळा वेगळा आहे. x1 चा प्लॉट का नाही झाला, x1 कुठं इथं ओव्हरराइड झालंय का x1, नाही. So let me see x1 and x2 values, x1 and x2 values. x2 में -424 -415, नहीं वैल्यू तो डिफरेंस है दोनों का, x1 and x2 तो टोटली डिफरेंट है. x1 stat normal, x1 I don't know why it is not printing out. So color is equal to, let's say, red, color is equal to, let's say, blue. -3 +3 पर्यंत जातोय, पण हा दोन्ही एका वेळेस का नाही होत. lt डॉट प्लॉट x1, हा दोन्ही एका वेळेस होत नाही, तो प्रॉब्लेम आहे बेसिकली, दोन्ही वेगळे वेगळेच आहे. सो लेट मी अल्टिमेटली टेल यू what I want is, in first plot I expected mu is equal to 0 and standard deviation as 1. In second plot I was expecting mu was 0 and standard deviation is 2. So ultimately let me just plot this using yellow, and let me plot this using red, let's say. So what is going to happen if we just plot it out, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस. तो ये जो मीन है दोनों का, ये अराउंड 0 है. सो मीन इज अराउंड 0, दोनों का मीन 0 है, तो दोनों 0 के यहाँ पे पिक पे जाएंगे. एंड येलो वाला कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल येलो, सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस. सो अगर ये -1 है, ये +1 है, ये +2 है, ये -2 है, लाइकवाइज. सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होते हैं, बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1. अगर मैंने दूसरा वाला निकाला यूजिंग रेड, सो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू -2 के एंड +2 के बीच में आएंगे. सो दिस प्लॉट इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस. So that is what spread is. So that is what spread is.
सो ये डिफरेंस आएगा, दोनों का मीन सेम जगह पे, अगर मीन हटा दिया तो ये लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज जस्ट व्हाट इट इज मीन। सो इसलिए मीन मैंने कांस्टेंट लिया, लेकिन आपने स्प्रेड देखा तो दिस इज गोइंग टू बी स्प्रेड। लेट मी टेक थर्ड एग्जांपल, म्यू इज सेम, दैट मींस मीन इज सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन में करता हूँ 0.5। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादातर वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी, -0.5 से लेकर +0.5 ज्यादातर वैल्यू। अभी ज्यादातर मतलब एग्जैक्टली कितने होते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। सो ज्यादातर वैल्यू -0.5 से +0.5 में। सो इफ यू जस्ट सी देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी सी, सो ये है ना, ये आपका थर्ड वाला प्लॉट है। तो दैट इज व्हाट स्प्रेड इज। लेकिन ये सिर्फ आपको -0.5 एंड +0.5 में भी ज्यादा वैल्यू आपको पुट अप करने, इसलिए आपका ये जो यहाँ पे जो है ये पीक बढ़ जाता है। सो यहाँ पे अगर अगर बंद मतलब अगर हम ये कम कर देते स्प्रेड, तो ये बढ़ने वाला है बीच वाला, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटीज, इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो ये बाजू वाली प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बीच वाले ज्यादा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट इट मींस। सो दिस इज काइंड ऑफ दिस इज व्हाट डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर। अभी वहां पे एक टाइम पे दिख नहीं रहे तो मैं देखता हूँ इसमें क्या इश्यू है, लेकिन फिलहाल ये मुझे एक्सपेक्टेड आंसर था, इससे मुझे दिखाना था आपको। सो दैट इज व्हाट योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन मींस। मीन तो सेम ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन मींस दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस this. Okay, now what we are going to do, this is your normal distribution is, so this is your normal distribution, या तो Gaussian distribution you can call it as. Now what, in these three normal, in these three distributions, one distribution is very special for us. What is that distribution? That distribution is this, whose mean is 0 but its standard deviation is 1. So if your mean is 0 and standard deviation is 1, we are going to call it as standard normal distribution. It is called as standard normal distribution. It is called as standard normal distribution. It is called as standard normal distribution का जो भी mean होता है वो 0 होता है and standard deviation is 1. तो इसमें जो प्लॉट है कौन सा वाला, येलो वाला। सो येलो वाला है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, येलो वाला है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप बोलोगे दूसरे भी क्यों नहीं लिए आपने कंसिडर के, सी इसके बाद में जो स्टैटिस्टिक डिस्कस करने वाले, इसमें जो पहला वाला प्लॉट है जिसका मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, वो प्लॉट के हिसाब से आगे वाला स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस करने वाले। व्हाट इज दैट स्टैटिस्टिक्स इज, लेट मी टेक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो एग्जांपल लेता हूँ और आगे वाला स्टैटिस्टिक डिस्कस करते हैं। नाउ इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, योर मीन इज 0 and standard deviation is 1, and as per that, let's consider we have got this particular distribution. अभी ये let me just, ये आपका 0 है, ठीक है। सो 0 को थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूँ। सो जो मीन है that I am just going to make it at this, so ultimately it is just going to be here. So this is your 0 is, now इसका standard deviation है 1, so let me just put what is -1 and minus सॉरी +1 is. so ये जो है ना ये मैं अभी दूसरे कलर से लेता हूँ, दिस इज योर, या okay, so this is your -1 and +1. Then after that let me put -2 and +2, -2 and +2. तो ये let me just put over here like this, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट द एरिया बिटवीन -1 एंड +1। so इसका मतलब कहने से दैट ये जो -1 एंड +1 के बीच वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेविएशन। इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट डेविएशन, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों, कारण क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, मतलब +-1, -1 से लेकर +1 तक योर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड जो -2 से लेकर +2 के 2 है, मतलब डबल इसके, इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड डेविएशन आई वी मस्ट कॉल इट एज फर्स्ट डेविएशन। मतलब इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इट इज जस्ट लाइक सिग्मा।
एंड जो दूसरा है इसको मैं बोलता हूँ 2 सिग्मा. So this is just for representation. Sigma मतलब क्या? The area that is been highlighted using blue shade. तो ये एरिया, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है फ्रॉम टोटल एरिया अंडर कर्व, अभी इसके अंडर अगर मैंने ये अगर आपका पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो अगर ये टोटल एरिया लिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व दैट इज गोइंग टू बी 1, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटीज का एडिशन होगा. द एरिया अंडर द कर्व इज जस्ट गोइंग टू बी एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो ये आप समझ सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इज गोइंग टू बी लाइक 1 हियर, बिकॉज ये जो कर्व है ये प्रोबेबिलिटी का कर्व है. अगर प्रोबेबिलिटी का कर्व, कोई भी प्रोबेबिलिटी का कर्व ले लो इन द यूनिवर्स, उसका एरिया अंडर द कर्व आता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा. सो उसके हिसाब से इफ आई जस्ट कंसीडर द एरिया अंडर दिस -1 टू +1 या तो फर्स्ट डेविएशन, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अराउंड 67 to 68%, या तो अगर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो 0.67. तो इतना एरिया आता है -1 टू +1. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हो कि अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 में से 67 स्टूडेंट्स का जो भी रीडिंग होगा, जो भी मार्क्स होंगे, ये -1 एंड +1 के बीच में आएंगे. अभी -1 एंड +1 आप मार्क्स के साथ कैसे ये कंपेयर कर रहे हो? तो लेट मी कॉल इट एज, अगर ये मार्क्स का एवरेज है फॉर एग्जांपल 60, ये अगर है -50, सॉरी ये अगर 50 है, ये अगर 70 है, तो उसके हिसाब से अगर ये फर्स्ट डेविएशन 10 है, फर्स्ट डेविएशन ±10, तो उसमें 50 to 70 के बीच में अराउंड 67 स्टूडेंट्स आएंगे आउट ऑफ 100. सो दैट इज व्हाट 67% इज. तो अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन है, तो 67% वैल्यूज आपको फर्स्ट डेविएशन में मिलेंगे. लेट मी टेक सेकंड डेविएशन आल्सो. सेकंड डेविएशन को मैं हाईलाइट करता हूँ यूजिंग फॉर एग्जांपल व्हाइट शेड. सो व्हाइट कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सेकंड डेविएशन, मतलब -2 से लेकर +2 तक. तो इसमें देखो ये बीच वाले भी नंबर आएंगे. सो -2 से लेकर +2 तक. तो ये अगर मैंने व्हाइट शेडेड पूरा रीजन देखा, तो इसमें अराउंड अराउंड आई थिंक इट इज अराउंड 97%, राइट? किती येतं जय? 97 पॉइंट समथिंग है, बट अराउंड 97% ऑफ द वैल्यूज कम बिटवीन -2 से +2 तक. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये -2 टू +2, अगर ये आपका मीन 60 है, मतलब 60 मार्क्स आपके एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो यहाँ पे 50, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ये 1, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन -10 +10 है, दूसरा होगा -20 +20, मतलब ये आएगा 40, ये आएगा 80. तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 to 80 के बीच में जो स्टूडेंट है, जितने मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट है, ये कितने स्टूडेंट है? 97 स्टूडेंट्स को आपको 40 to 80 के बीच में मार्क्स मिलने वाले. कितने? 97 स्टूडेंट्स को. So the same thing we are just going to analyze using the Jupyter. So Jupyter से ये देखते हैं कि ये सही में ऐसा है क्या. So what I will do, I will just create some random values as per standard normal distribution. तो अभी मैं क्या करता हूँ, let me create some y values. So let me create y values using standard normal deviation. तो मैं क्या करता हूँ, okay, so np dot random dot, आपने ये फंक्शन देखा होगा random n. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द वैल्यूज फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आई थिंक ये आपको पहले बताया था मैंने, लेकिन ये n स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब इससे जो भी वैल्यू जनरेट होंगे, जो भी y में वैल्यू जनरेट होंगे, इनका मीन होना चाहिए 0 एंड इनका स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए 1. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कितने वैल्यूज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 200 वैल्यूज लेता हूँ, मैं ऐसे 200 वैल्यूज लेता हूँ. सो लेट्स कंसीडर y जस्ट गोइंग टू बी मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स. तो ये 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. सो ये नंबर आपको मिल गए, ये नंबर आपको मिल गए. अभी आप बोलोगे कि देखते हैं सर इस y का मीन कितना है. सो y का मीन क्या होना चाहिए? y डॉट मीन ये होना चाहिए 0. सो y डॉट मीन होना चाहिए 0 एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो y या तो np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
y ऐसे भी लिख सकते हैं. सो यू कैन जस्ट सी दैट इसका जो मीन है ये -0.08, सो क्वाइट क्लोज टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो. एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 1.01. आप बोलेगे सर एग्जैक्टली क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? सी, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज. जैसे अगर आपने 200 का 2000 किया ना, तो ये अगेन गोइंग टू बी क्लोज टू जीरो एंड इट इज गोइंग टू क्लोज टू वन. अगर 200 का 2000 किया तो, सो लेट मी मेक इट 2000. सो 2000 करने के बाद अगर मैंने इसी को फिर से रन किया, लेट मी जस्ट रन बिलो, तो और क्लोज हो जाएंगे 0 और 1 के वैल्यूज. तो आप देख सकते हैं इससे ज्यादा क्लोज ये है जीरो के, एंड ये आई थिंक इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया लेकिन क्लोज टू 1 ही है. सो अगर ये आप नंबर ऑफ ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज ये बढ़ाते हैं तो उस केस में यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यूज एग्जैक्टली जीरो एग्जैक्टली वन. ये ऐसे कभी नहीं है बिकॉज दीज आर रैंडम वैल्यूज बेसिकली, लेकिन दीज आर क्लोज टू, these are close to 0 and 2. So now you can see minus 0.5 and minus 0.95. So that is just going to be this. So इसका मतलब पहली बात तो क्लियर होगी कि इसका मीन 0 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 1 है. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी मैं चेक करूंगा कि ये जो भी वैल्यूज है ना इनका हिस्टोग्राम निकालता हूँ. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हिस्टोग्राम? सो plt डॉट, आई थिंक हिस्टोग्राम है plt में, यस. तो इसका मैं हिस्टोग्राम निकालता हूँ y वैल्यूज का, एंड नाउ यू कैन सी हिस्टोग्राम इज लाइक दिस. अभी आप बोल सकते ये तो एग्जैक्टली उस कर्व जैसा नहीं है. यस ऑब्वियसली, बिकॉज दीज आर सम डिस्क्रीट वैल्यूज. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, नो नो इश्यूज, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सीबन में भी ये निकाल सकते हैं, सीबन में भी ये निकाल सकते हैं. आई डोंट नो कि यहाँ पे केडी ऑप्शन है क्या, लेकिन सीबन में केडी ऑप्शन था, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, आपने देखा होगा उस टाइम पे. तो यहाँ पे क्या केडी नहीं है, केडी केडी नहीं है, ठीक है. सो ये सीबन में आपने उस टाइम पे देखा होगा. अभी बिन्स मतलब यहाँ पे जो भी बिन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिन्स है बाय डिफॉल्ट. तो अगर मैंने इन बिन्स को कर दिया 20, तो इसका मतलब 20 के हिसाब से स्टेप्स तैयार हो गए. अभी यहाँ पे 10 के हिसाब से स्टेप, मतलब 10 स्टेप्स तैयार हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 स्टेप्स है, अभी 20 क्रिएट करता हूँ मैं. सो दिस इज दैट. सो आप देख सकते हैं ये 20 स्टेप्स है अराउंड. सो 20 बार्स वी कैन से. आप बोलोगे एग्जैक्टली ये कर्व जैसा नहीं दिख रहा है. एग्जैक्टली कर्व मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे. सो ऑब्वियसली अगर डिस्क्रीट वैल्यूज है तो ये एग्जैक्टली कर्व जैसे नहीं दिखेगा. आप बोलोगे सर यहाँ पे एक बीच में ऊपर क्यों आया, हो सकता है बिकॉज दीज आर सम काइंड ऑफ रियलिस्टिक वैल्यूज. रियलिटी में भी ऐसे हो सकता है कि जो मार्क्स है वो 40 to 60 के बीच में काफी ज्यादा स्टूडेंट को मिले, लेकिन ऐसे हो सकता है कि 20 मार्क्स ज्यादा लोगों को मिले, तो उस केस में इट माइट हैपन. ये ऐसे नहीं कि नॉर्मली ही होना चाहिए एग्जैक्टली, बट their characteristics like mean and deviation are same as your standard deviation. अभी इसमें देखेंगे कि जो आपका ये जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें -1 एंड +1 के बीच में मैंने बोला था कि अराउंड 67% वैल्यूज आते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो -1 एंड +1 के बीच में कितने वैल्यूज आते हैं, 67% ऑफ द वैल्यूज आपके -1 एंड +1 के बीच में आता है. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चेक कि ये जो y है आपका, इसमें -1 एंड +1 के बीच में कौन से वैल्यूज आ रहे हैं. तो अगर आपको चेक करना है कि कौन से वैल्यूज -1 से ग्रेटर है, हाउ डू वी चेक? y ग्रेटर देन -1. तो ये ट्रू एंड फॉल्स का आपको बुलियन एरे मिलेगा, ठीक है, राइट. दिस इज बुलियन एरे. अभी सिर्फ मुझे y ग्रेटर देन -1 नहीं चाहिए, लेस देन 1 भी चाहिए. तो इसमें और एक कंडीशन मुझे चेक लिखना पड़ेगा. सो y ग्रेटर देन -1 एंड y must be less than +1. So less than, actually I must say that less than my equal to, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन. एक साइड को ग्रेटर देन रखेंगे, एक साइड को लेस देन इक्वल टू रखेंगे, काइंड ऑफ थिंग. अभी ये जो दो है ये दो बुलियन एरेस है, इनको मुझे कनेक्ट करना है. तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे इन बिटवीन, क्योंकि इनका एंड चाहिए, -1 से ज्यादा एंड 1 से लेस. तो यहाँ पे क्या कैसे एंड लिखे, ये एंड चलेगा? दिस इज क्वेश्चन टू यू.
इज इट गोइंग टू वर्क? लॉजिकल एंड काम करेगा? यस, इट मस्ट बी अ बिटवाइज, ये लॉजिकल एंड है, सो लॉजिकल एंड नेवर वर्क्स विथ बुलियन एरे। तो बुलियन एरे है तो आपको बिटवाइज एंड लेना पड़ेगा, दिस इज बिटवाइज एंड। सो आई थिंक ये आप भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सो लेट्स सी, यस दिस मस्ट वैल्यूज वी आर हैविंग नाउ। तो ये ट्रू का मतलब क्या है? इस ट्रू का मतलब है कि ये जो थर्ड वैल्यू है जो भी y में, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मुझे क्या करना है, ये कितने ट्रूज है वो काउंट करने हैं, ये कितने ट्रूज है वो काउंट करने हैं। तो ट्रूज काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो बुलियन आ रहे हैं इसको मैं क्या करूंगा, वो हाउ हाउ कैन आई काउंट दिस ट्रू वैल्यूज? यहाँ पे काउंट करेगा ऐसे, यस दैट इज सम इज, सो इन सबका मैं सम करूंगा। तो देखते हैं कितना है। सो दैट इज 139 इज। सो आप बोलोगे सर ये 65% है क्या? सी 139 डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 200। क्यों? क्योंकि टोटल 200 है। सो आउट ऑफ 200 139 है, तो आउट ऑफ 100 कितने, दैट वी आर गोइंग टू चेक। सो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 139 डिवाइड बाय 200 एंड इसका जो भी वैल्यू आता है दैट इज जस्ट इट इज गोइंग टू बी, सो दैट इज व्हाट 0.695, सो अराउंड 69.5 परसेंटेज में निकालेंगे तो 69.5% वैल्यूज इनके बीच में। कैन आई से दैट 69 पॉइंट? आप बोलोगे सर आपने 67 बोला था, सी ये अराउंड 67, आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा। सो अराउंड 67% आते हैं। सो अराउंड 67 मतलब कभी 65 भी आ सकते हैं, कभी 69 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन जनरल इट इज बीन कंसिडर दैट इट इज गोइंग टू बी अराउंड 67। अभी देखो यहाँ पे कैसे कि हमारे सिर्फ 200 पॉइंट्स है, तो उतना ज्यादा स्कोप भी नहीं है कि रैंडमनेस उतना कंटिन्यूअस हो जाए। अगर आपके पास थाउजेंड्स में या लैक्स में वैल्यूज है तो रैंडमनेस उतना कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन इतने कम वैल्यूज में ये इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा, एंड दैट इज ओके, नो इश्यूज। रियल लाइफ में एग्जैक्टली 67 आना नॉट पॉसिबल। So this is about 200 values. Now what I will do, I will just check for the values between second deviation, मतलब -2 से लेकर +2 तक, -2 से लेकर +2 तक। तो मैंने बताया था 97%। अभी देखते हैं कितना आएगा। सो उसके लिए भी सेम करेंगे, सिर्फ what I will do right here, -2 से लेकर +2 तक। So let's find out how many values are there. So इसका मतलब क्या, 193 divided by 200. So let's find out probability. So 96.5 it comes under, मतलब अगर परसेंटेज में बोले तो it is fraction, but परसेंटेज में बोले तो about 96.5% of the values are between -2 to +2, -2 to +2. So that is what standard normal distribution is. That is what standard normal distribution is. तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टीज की वजह से जनरली हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ओनली, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ओनली वी जस्ट यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जैक्टली ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली ये बताता है कि -1 to +1 के बीच में अराउंड कितने परसेंट लोग आते हैं। सो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप एग्जैक्टली बता सकते हैं -2 से लेकर +2 के बीच में कितने अराउंड लोग आते हैं। सो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी -3 से +3 के बीच में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके लिए ये डेटा बहुत ही कम है। वैसे देख सकते हैं तो सिर्फ 7 वैल्यूज आर देयर जो -2 एंड +2 से ग्रेटर देन और लेस देन है। सो ये बहुत ही कम नंबर। सो व्हाट आई विल डू, अभी सेम प्रॉब्लम को आई विल जस्ट सॉल्व विथ लेट्स कंसीडर 5000 नंबर्स। सो लेट मी कॉल इट एज 5000 नंबर्स। सो 5000 इसलिए ले रहा हूँ कि मैं -3 +3 के लिए सफिशिएंट नंबर्स बाकी रहे। अभी देखो -3 +3 के लिए हमारे पास सिर्फ 7 नंबर्स बाकी थे। सो अभी 5000 में लेता हूँ, बड़ा एरे लेता हूँ। लेट मी, या ठीक है, 5000 इज ओके। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कैलकुलेट एवरीथिंग नाउ। आप देख सकते हैं मीन एंड वेरिएंस। अब देखो मीन क्वाइट क्लोज टू क्लोज टू 0, लास्ट टाइम ये 0.05 समथिंग था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्वाइट क्लोज टू 1। सो ये प्रॉपर आ जाएगा ऐसे लग रहा है मुझे। सो लेट मी जस्ट प्लॉट द हिस्टोग्राम। अभी देखो ये ऑलमोस्ट प्रॉपरली स्टैंडर्ड डेविएशन लग रहा है, राइट? इट इज क्वाइट प्रॉपरली
स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट मी यूज 40 बिन्स, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दिख सकता है लेकिन या ये 40 बिन्स। अगर मैं सिर्फ 10 बिन्स, बाय डिफॉल्ट जो बिन्स है 10, ये अगर यूज किए तो ये तो प्रॉपरली स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन ही देखेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। 20 आई थिंक क्या था फर्स्ट टाइम, या सो ये प्रॉपर दिख रहा है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन। सो अभी देखते हैं कि कितने लोग हैं फर्स्ट डेविएशन में। सो फर्स्ट डेविएशन में 3402। सो देखते हैं कि ये जो है 3402 का परसेंटेज निकालते हैं, तो 3402 आउट ऑफ 5000, तो आउट ऑफ 5000 3402 ये आपके क्या है फर्स्ट डेविएशन में नंबर से। सो इसका परसेंटेज देखते हैं, दैट इज 68%, दैट इज 68%। सो क्या मतलब क्वाइट क्लोज टू 67। सो 67 टू 68 के बीच में अराउंड रहता ही है। ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में देखता हूँ अभी कितने हैं इसमें, इसमें 4762 है। तो इसका जो परसेंटेज आएगा सो कितना आएगा, 4762 डिवाइड बाय 5000, so that you can just see around 95.24। अभी आप बोलेगे सर यहाँ पे तो थोड़ा सा ही लग रहा है, it is not close to 97। okay, so ये होता है इतना ज्यादा। लेकिन now let's find for third one, जो थर्ड वन है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका डायरेक्टली मैं निकालता हूँ परसेंटेज। सो यू कैन जस्ट थर्ड का सो ये थ्री होना चाहिए। ओके, सो ये आई थिंक 99.7 समथिंग आता है। सो देखते हैं कितना आता है, 99 पॉइंट समथिंग 7 ऐसे कुछ तो आता है, या 99.7 ये एग्जैक्ट है 99.7%। सो इसका मतलब जो फर्स्ट डेविएशन है इसमें आपके अराउंड 67 टू 68% वैल्यूज होते हैं, सेकेंड डेविएशन में इतना, थर्ड डेविएशन में अगर आपने देखा तो थर्ड डेविएशन में, इन थर्ड डेविएशन -3 टू +3, इसमें कितने वैल्यूज आ रहे हैं, अराउंड 99.7%। ये तो स्टैंडर्ड ही वैल्यू है दिया हुआ, एंड उतना ही आया हमारे डेटा के लिए भी, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। अगर कोई डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, सो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है हमने कैलकुलेट किया, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। लेट मी टेल यू द एग्जांपल। Now what I will do, I will take one distribution. So for example, it is distribution of marks. Let's say marks ka distribution. So marks ka distribution, let me just show you that distribution over here. And ये 0 है मार्क्स, ये 100 मार्क्स है, मतलब आउट ऑफ मार्क्स। ये मीन जो है उनका ये 50 मार्क्स पे मीन है, इसे कंसिडर करो। ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मीन तो पहली बार 50 है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, यूजिंग इट्स मीन। सो मीन है इसका 50, एंड इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन is just going to be, let's consider 15, standard deviation is going to be 15। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I will just put some value। so 50 मतलब 50 पहला जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये कहाँ पे होगा, 50 माइनस 15 मतलब ये 35 से लेकर 65 तक, राइट। तो ये होगा आपका फर्स्ट डेविएशन, दिस इज योर फर्स्ट डेविएशन मतलब सिग्मा। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मतलब -2 सिग्मा +2 सिग्मा, मतलब सिग्मा 50 है आपका, 15 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 30 -30 +30, तो ये आएगा 20 के यहाँ पे। सो ये 20 एंड ये 80 के यहाँ पे। तो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी योर सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका सेकंड डेविएशन, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड डेविएशन। एंड जो थर्ड डेविएशन है, ये थर्ड डेविएशन कहाँ पे आएगा, 50 माइनस 3.15 मतलब ये आएगा 5 पे। सो 5 पे एंड 50 प्लस 3.15 दैट इज 3 सिग्मा। 3 सिग्मा इज व्हाट, 3 टाइम्स 15 मतलब 45। सो प्लस माइनस 45, 50 से माइनस 45 इज 5 एंड 50 प्लस 45 इज 95। सो ये जो है ये आएगा आपका थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन।
Now our question is that how many students got marks between 35 to 65? सो ये अगर आपको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि 35 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, कैन आई से दैट 35 to 65, ये काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। 35 to 65, कैन आई से दैट ये आपका एक सिग्मा है। सिग्मा मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 + 1 है। -1 मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन में -1 + 1 होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा होता है। सो दैट इज व्हाट सिग्मा इज। तो ये जो है, ये जो एरिया, इसमें कितने लोग आ रहे हैं, इसमें कितने लोग आ रहे हैं, 67%। सो 67% ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये 100 स्टूडेंट्स लेते हैं हम, कितने 100 स्टूडेंट्स लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स लेट्स कंसीडर वी आर हैविंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 35 to 65 के बीच में मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 67 स्टूडेंट्स होंगे। दैट इज व्हाट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन 20 टू 80, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए 20 to 80 के बीच में, कैन आई से दैट दिस इज योर सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड डेविएशन, नॉट स्टैंडर्ड, दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 20 to 80 के बीच में कितने आते हैं अराउंड, यस 97%। आई थिंक 95 to 97, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, 95 to 97। लेट मी जस्ट चेक, स्टैंडर्ड 95 है का, येस येस, सो दॅट इज 95। मी तुम्हाला 97 बोलतो आणि अनफॉर्च्युनेटली 95 आलं पण होतं आपल्या डिस्ट्रीब्युशनला, सो त्याच्यामुळे ते अजून माझ्या डोक्यामध्ये 97च फिरते। ठीक आहे, दिस इज नॉट 97, दिस इज 95%, and third is 99.7, right? So if you just ask the question that कितने लोगों को 5 to 95 के बीच में मार्क्स मिले, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे 5 to 95 के बीच में, दैट इज 99.7%। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, तो 99.7 नहीं लिख सकता, सिर्फ 99 बोलूंगा मैं। सो स्टैटिस्टिकली विदाउट लुकिंग एट द डेटा, सिर्फ उसका कर्व देखो, उन कर्व के हिसाब से आई कैन जस्ट फाइंड आउट 35 to 65 के बीच में 67 स्टूडेंट्स आने वाले, आपके 20 to 80 के बीच में 95 स्टूडेंट्स, 5 to 95 के बीच में 99। आप बोलेगे सर लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज काउंट बिटवीन 40 to 50, what is count between 40 to 50? Yes, we can calculate that we are going to discuss tomorrow। तो exactly आप देख सकते हैं 40 to 50 के बीच में कितने मार्क्स है। सो अभी इसमें एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता हूं मैं, दैट इज रिगार्डिंग लाइक्लीहुड। एक लाइक्लीहुड नाम का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड। सो अगर आपने कभी प्रोबेबिलिटी के में डिस्कस देखा है, कभी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, तो लाइक्लीहुड भी एक क्वेश्चन होता है। तो उसके रिगार्डिंग है लाइक्लीहुड अंडरस्टैंड करने के लिए। इफ आई आस्क यू कि ये अगर आपका जो क्लास है, ये जो आपका क्लास है, सो ये क्लास का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इफ आई गिव यू आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the student in this class is going to get marks between 35 to 65। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि 35 to 65 के बीच में मार्क्स मिलने के चांसेस कितने हैं, तो कितने चांसेस है, दैट इज 67%। Now, if I ask you question that what are the chances to get marks more than 80%, अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा तो कैन यू टेल मी द आंसर, यू कैन जस्ट पुट योर आंसर्स इनटू चैट बॉक्स। अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट आर द चांसेस टू गेट मार्क्स मोर देन 80, सो मोर देन 80 मतलब 80 से ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस कितने इस क्लास के, कितने स्टूडेंट को 80 से ज्यादा मार्क्स आए, दैट इज व्हाट अल्टीमेटली क्वेश्चन इज। पुट योर आंसर्स इनटू चैट बॉक्स।
ओके, सो लेट मी टेल यू नाउ। मैंने पूछा कि 80 से ज्यादा, सो ग्रेटर देन 80। तो ग्रेटर देन 80 मतलब कैन आई से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, 80 से ज्यादा वाले। तो 80 से ज्यादा वाला मतलब ये रीजन कितना है? लेट मी आस्क यू, अगर मैंने आपको पूछा होता कि 20 टू 80 के बीच में कितने लोग हैं, मतलब ये वाले हैं, तो 20 टू 80 के बीच में आप बोल देंगे कि यस 95% लोग हैं इसके बीच में। तो इसका मतलब 20 टू 80 के बाहर वाले कितने लोग हैं? 20 टू 80 के बाहर वाले लोग 5%। 20 टू 80 के बाहर मतलब 20 से लेस वाले एंड 80 से ग्रेटर वाले, ये कितने लोग हैं? 5%। अभी ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी, लेफ्ट राइट सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 80, इसमें 5% आधे आधे बटेंगे, तो इसका मतलब 2.5% यहाँ पे आएंगे एंड 2.5% यहाँ पे आएंगे। So it means that the likelihood of getting more than 80% of Mars is going to be 2.5. So there are 2.5% chances to get more than 80 Mars. तो अगर आपका 100 का क्लास है तो 2.5 स्टूडेंट को 80 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। That is what it means. That is what it means. Now, if I ask you the question, what are the chances to get marks less than 35? 35 से कम मार्क्स आने के चांसेस क्या है इन दिस क्लास? यू कैन पुट योर आंसर्स इनटू चैट बॉक्स नाउ। लेस देन 35 कितने लोगों को मार्क्स होंगे? लेस देन 35। Less than 35 means I am asking about this region. Less than 35 means I am asking about this region. कितने स्टूडेंट्स होंगे इसमें? Yes, that is right. That is right. तो दैट इज बिटवीन 16 टू 70 और 16.5 भी बोल सकते हैं। 14 इज आल्सो क्लोज आंसर। प्रदीप ने हाफ नहीं किया, मतलब ये देख सकते हैं, ये प्रदीप ने क्या किया कि ये भी कंसीडर किया। सो दोनों टोटल मिलके अगर ये बीच वाला एरिया में कितने 67 है, तो बाजू वाले एरिया में कितने रह गए? 33। सो ये 33 मतलब यहाँ पे 33 में से यहाँ पे हाफ आएंगे एंड यहाँ पे हाफ आएंगे। ओके, सो दैट इज बिटवीन 16 टू 17 ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके, एंड ये जो है ये अगर आपको समझ में आया है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ये जो स्टैटिक जो जो लोग बोलते हैं ना डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आता, दिस इज व्हाट दिस स्टैटिस्टिक्स इज। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गेट इट। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I will just post this video. If you want, you can just see this video again. ये आपके लिए मैंने रिकॉर्ड किया, you can just see this video again and again. लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के ले लो कि what is meant by this concept. So what is variance, what is standard deviation, what is meant by this likelihood, अभी तक तो नहीं, लेकिन ये जो मैं परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बोला, ग्रेटर देन 80 लेस देन 20, ये आपका परफेक्ट होना ही चाहिए। ये अगर आपका परफेक्ट होता है तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स का कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ले लो, आपको ये मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ, ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही कंसिडर करो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी। इसको मतलब थोड़ा सा इसमें होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग से, लेकिन यही है। So that is for today, a very very important session regarding statistics। काफी ज्यादा statistics यहाँ पे discuss किया है। Again and again we are just going
through this particular concept, so don't worry about it. अगर समझ में नहीं आया, still we are just going to look this concept many times, don't worry about it. So I will also share the same recording to you, so don't worry about that. बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो अगर आपको रीड करना है कुछ मटेरियल, यू कैन जस्ट गो एंड रीड articles from medium.com towards datascience.com, machinelearningmastery.com. So there are many good articles regarding this are there, so you can just go through that articles also. Now you can just ask if you have any doubt regarding this.